Commerce, but my brother graduated from this college. So I had, and he did it in 2007 in Commerce, BCom Honors. So I had some of the opportunities when he was doing his graduation to visit the college, not much, but yes. So I am really feeling so excited. In fact, in the morning I messaged to my brother that I am going to your alma mater institution. So he was also very delighted. So thank you for inviting me over here. My dear students, the Vice Principal Sir, the faculty, all the team members of Kartavya Society. And it really fills me with joy and enthusiasm to see that how young people like you, young minds like you, are putting so much of effort and organizing such sessions, such seminars, and guiding others. So basically this kind of forum in which Vice Principals have also said that it should not be an event. It should be some session in which at least one learning point you are taking, या आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेट मी एडमिट, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई उस तरीके के सेशंस भी नहीं लेती हूँ. जो मैं शेयर करूँगी that would be purely on the basis of my own experience and I never prepare any scripted speeches. मैं जो बोलूँगी एक्सटेम्पोरली बोलूँगी और शुरुआत में जो मैं अपने बारे में थोड़ा अपना जर्नी शेयर करूंगी उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स अबाउट द टॉपिक व्हिच सेज उत्कृष्ट, हाउ यू कैन अचीव एक्सीलेंस, व्हाट इज एक्सीलेंस, योर जर्नी इनटू अचीविंग एक्सीलेंस. आई डेफिनेटली लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दैट बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस एंड बाद में आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर 4 or 5 क्वेश्चंस अमंग्स द ऑडियंस स्टूडेंट्स जिनको कुछ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या जीवन में और किसी इशू को लेके भी अगर मेरे से कुछ सजेशन फीडबैक चाहिए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, like it has been mentioned in my introduction also, I am Sonal Bal. I belong to the 2008 batch of the IAS and academically I did my graduation from Shriram College of Commerce, Delhi University way back in 2003. I am also a CS and LLB. I did LLB also from Delhi University. I am an MA Public Policy and I am also pursuing LLM right now. So I just appeared for the second year exams. So that is my professional and academic background. If I talk about how I came into civil services, because I am very happy to see so many of the female students in the gathering today. So I was way back, I would like to mention briefly about my journey. So it was way back in 2003 when I was in my 3rd year of graduation and I was also doing CS. So that time doing CS with your graduation was allowed. In between I think there were restrictions for some years. Now again the system has changed. So at that time it was there was no problem. So I was in my 3rd year of graduation and till that time in fact I had in my mind that I will be in private sector. So I had visualized myself working in private sector or join a corporate law firm or whatever, or maybe set up my own practice in future. But I read about civil services in some magazine. And friends, frankly, my family hailing from Panipat district in Haryana. So लगभग 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ कि सोसाइटी आज जितना प्रोग्रेसिव है, आज जो हम विमेन का पोजीशन को लेकर जो पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं, उस टाइम में मैं उस लेवल पे नहीं था. हालांकि मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं. माय फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पापा सेट अप हिज प्रैक्टिस इन दिल्ली. सो ड्यू टू दैट रीजन माय एजुकेशन हैज बीन इन दिल्ली ओनली. बट फिर भी जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में बात की, स्पेशली माय पेरेंट्स और माय फादर, सो लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस केम इनटू देयर माइंड. फर्स्टली कि ये करियर का पूरा ही शिफ्ट होगा, बिकॉज मेरा कभी चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था कि मैं ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगी, सिविल सर्विसेज में जाऊंगी. हमारी फैमिली बिजनेस क्लास फैमिली है. इनफैक्ट माय फादर वाज द फर्स्ट वन टू इनफैक्ट परस्यू इनटू सम हायर एजुकेशन, अदरवाइज इट वाज अ प्योरली बिजनेस फैमिली. तो वो एक उनके लिए सरप्राइज था कि मैंने ये सोचा भी कैसे, मैंने कहाँ पढ़ा, क्यों और क्या मेरे माइंड में आया, मुझे इसमें क्यों जाना है. सो देन आई हैड अ डायलॉग दैट
I feel that this will give me an opportunity and a platform जो एक मिडिल क्लास फैमिली में लड़की पढ़ाई करके और जो ये इच्छा रखती है कि मैं देश और समाज के लिए कुछ करूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए. But then this dialogue discussion kept on, for around 6 to 8 months. कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा. सिविल सर्विसेज इज स्टिल वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री. Doctors, IIM graduates, and I mean, we all know the way the examination process is. And then even after selection, which service I will get, which cadre I will get, कहाँ posting होगा, and how will I settle my family life, more so being a female. Husband भी कौन सर्विस में होंगे नहीं होंगे. So all these things, so there was lot of discussion, but then I told them कि मुझे एक मौका तो आपको देना पड़ेगा. So then my father said, okay, if you want to appear, then you appear, but you should have a plan B in life. That was my father's very practical and a realistic advice, that I should have a plan B in life. So by plan B he meant कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं होता है, तो 2 या 3 साल जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं कहाँ खड़ी होंगी अगर मेरा क्लियर नहीं होगा, और तब मैं क्या करूँगी, ये मुझे आज सोचना पड़ेगा. सो टेकिंग हिज एडवाइस आई मतलब वी अग्रीड दैट मेरा सीएस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आई स्टार्ट परस्यूइंग माय एलएलबी लॉ, and I will also start my civil services preparation. So taking that thing in my mind, मेरा graduation complete हुआ 2003. I completed my CS in 2004. June 2004 exams I had qualified. I became company secretary, and in the same year I appeared for LLB entrance, Delhi University. I got myself enrolled. I started my LLB. Simultaneously, I also started my civil services preparation. And क्योंकि मेरा सीएस कंप्लीट हो गया, तो 2 चीजें मेरे दिमाग में ये भी घूम रही थी कि मुझे कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और दूसरा मुझे कुछ अपनी हायर स्टडीज को खुद फाइनेंस करना है. आई शुड ऑल्सो फाइनेंस माई ओन स्टडीज, नॉट फुल्ली, टू एन एक्सटेंट एटलीस्ट. सो 2004 to 2007, these 3 things were parallel in my life. I was totally focusing on civil services preparation, but yes, attending LLB classes, रेगुलर कोर्स था, वहाँ क्लासेस में भी मुझे जाना पड़ता था, और मेरा जो पार्ट टाइम जॉब था वो भी मैं कर रही थी. 2006 I appeared for my first attempt. Fortunately or unfortunately, I wrote mains, but I did not get the interview call. So the third stage जो होता है, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई. So lot of disappointment, frustration, and confusion, apprehensions कि आगे क्या करना है, कैसे करना है. But then I had no other choice, because मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मुझे थोड़ा ये पता लगा कि मेरा मेंस में कमी कहाँ रहा है, और वो कमी मेरा शायद जनरल स्टडीज में रहा, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, लाइक फ्रॉम 11th से आई हैड बीन इनटू कॉमर्स ओनली. सो आई कुड रियलाइज दैट आई नीड टू वर्क अपॉन इम्प्रूविंग माय जीएस, एंड जीएस कैरीज गुड वेटेज एज फार एज द मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड. So जितना भी टाइम मेरे पास था, I gave a commitment to my own self that this would be my 100%, and I should give so much of effort that I should not repent in future कि ये मैंने नहीं किया या मैं इसको और अच्छा कर सकती थी. So second attempt जब मैंने दिया 2007 में, I gave all my effort, enthusiasm, energy, and by God's grace I qualified in the examination. 2008 में हमारा रिजल्ट आया, May 2008, and I qualified with All India rank 13. I still remember the day when the result was announced. उस टाइम में ये हमारे पास independent mobiles भी नहीं होते थे. I was sharing phone with my mobile phone with my elder sister. So there was a call on my landline. They are saying that the result has been announced. One of my friends in fact called. And he said कि yours is this is rank 13th. So I could not believe. मैंने कहा like he is joking or whatever. And frankly cyber cafe जाने में भी, क्योंकि हमारे घर से दूर था, तो but by chance हमने घर में इंटरनेट का फैसिलिटी लिया हुआ था, but वो off and on, because 20 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ. तो फिर मैंने जब कंप्यूटर में चेक किया कि हाँ वेबसाइट यूपीएससी वेबसाइट में है रोल नंबर, so that
Movement has actually changed the way I have been leading my life. My selection into civil services has actually transformed my personality, has actually transformed the way and orientation I look at things. After selection, I went to Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie for my training. I met my batchmates who were from different services. In fact, IAS, IPS, foreign service and foreign service. At that time, these services were teamed together initially, and they were all having so much of diverse background, diverse states, language, culture. बहुत अच्छा. In fact, लवासना मसूरी मेरे लिए मेरी लाइफ का फर्स्ट हॉस्टल था. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉयबल पीरियड था, बहुत कुछ सीखा. And then in December 2008, our cadres were announced, and I was allotted to Manipur Tripura cadre. So that time was a roster system, जो अभी तो change हो गया. 2009 onwards the system has changed. So I got empty cadre. Initially, frankly, I would not hesitate in saying कि I was very much apprehensive, क्योंकि मैं कभी नॉर्दर्न इंडिया के बाहर मैंने कभी ट्रैवल ही नहीं किया था. I had never seen that part except in the map. मैंने कभी आसाम भी नहीं ट्रैवल किया था, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे वहाँ एडजस्ट करूँगी. प्लस यू नो इन योर इनिशियल पोस्टिंग्स यू हैव टू बी इन फील्ड ओनली. ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगी और मैं सेक्रेटेरिएट में पोस्टिंग हेडक्वार्टर में लेके मैं बैठ जाऊँगी. आई न्यू इट वुड बी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ. बट देन जब मैंने फिर ये सोचा कि जब ईश्वर ने ये चैलेंज दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, और मुझे इस काबिल समझा कि मैं शायद उस एरिया के लोगों को जो कि आज भी डिप्राइव्ड हैं उनके लिए शायद कुछ कर पाऊँ, इसीलिए शायद मुझे चुना गया. तो देन आई had all my energy. I joined there in June 2009. And friends, frankly, जाने की इनिशियली कुछ दिन तक भी मैं सेटल नहीं हो पाई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लवासना मेरा फर्स्ट हॉस्टल था. तो त्रिपुरा बहुत ही छोटा राज्य है बट बहुत ब्यूटीफुल है, और लोग बहुत पीस लविंग हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. they give so much of respect to the officer, especially if you are from outside. So I started my career from my first posting there was as SDM Mombasa. There were places in my subdivision where there were no roads. I mean last habitation जहाँ तक थी, जो विलेज कमिटीज होती है, जो हम ट्राइबल हैबिटेशंस बोलते हैं, तो वहाँ पे 5-7-10 किलोमीटर तक भी ऐसा था कि मोटरेबल रोड नहीं बनी थी. अब तो ऑफ कोर्स सिचुएशन इज मच इम्प्रूव. सो वी यूज्ड टू वॉक ऑन फुट टू रीच टू दोज लोकेशंस, एंड द हैप्पीनेस इट यूज्ड टू गिव टू अस कि आप उन लोगों तक पहुँच पा रहे हो, उन लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हो. सो ऑल दीज years in my cadre Tripura, and then I came to Haryana on inter-cadre deputation. I served in Haryana for 4 years, and now I am back to Tripura. So all these 14 years of my service has actually taught me that wherever we are going, that is with a purpose. अब मैं जो excellence हमारा जो आज का main जो discussion है, उत्कृष्ट, हम एक्सीलेंस को कैसे पाएं, एक्सीलेंस क्या है, एक्सीलेंस क्यों जरूरी है, या इसके क्या मायने हैं एक विद्यार्थी के जीवन में, एक यूथ के जीवन में, इसको डिस्कस थोड़ा सा करना चाहूंगी कि all of us have the immense potential, but 3 things I always request students should be clear in our minds. It should be clear in our vision that what is it that you want to achieve. आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं. वो चाहे आप अपने आप को विजुअलाइज करो अब से 3 साल बाद, या विजुअलाइज करो अब से 5 साल बाद, लेकिन क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आवश्यक है आपके माइंड में आज होना. क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, नाउ यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन के बाद 20-21 साल के बाद में you will have the entire world open to you. Some of you may be undertaking a job, some of you may be undertaking a higher education, किसी की मैरिज हो जाएगी, so you will have a different kind of a life unfolding for you. So what is it that you want to achieve? How is it that you are going to do this? Second aspect is how is it? आप उसको कैसे अचीव करोगे?
आपको एमबीए करना है, एमबीए का एग्जाम आज से 2 साल बाद होगा या 3 साल बाद होगा, उसके लिए मुझे आज क्या करना है एंड वाई। ये वाई जो है ये बहुत जरूरी है। ये वाई इसलिए जरूरी है कि ये जो बर्निंग पर्पस है, ये जो बर्निंग एम है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, या मुझे एक कंपनी में सीईओ के पद पे काम करना है, या मुझे मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है, मुझे क्यों बनना है? सो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस मैं जो प्ले रोल मैं अपने आप जो फॉलो करती हूँ वो करती हूँ व्हाई, मुझे क्यों करना है ये। Because this burning purpose will only keep on motivating you, it will keep on dragging you कि जब आप फेल होगे या जब आप डिमोटिवेटेड होगे या जब आप लो फेजेस में होगे, जैसे मैं भी सिविल सर्विसेज में 14 साल मेरे हो गए। कई बार ऐसे होता है कि आई ऑल्सो हैव माई सेल्फ डाउट कि मैं क्यों आ गई इस नौकरी में, मैं प्राइवेट सेक्टर में ही अच्छी थी। लेकिन फिर ये जो क्वेश्चनिंग है कि व्हाई आई एम हियर, क्यों हूं मैं यहाँ पे, क्यों आपको क्या अचीव करना है, वो क्यों करना है। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर एंड विद दिस व्हेन यू आर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, सो जो आपका ओवरऑल विजन है उसको यू हैव टू मेक इट रियलिस्टिक। ये सिर्फ किताबी बातों में नहीं अच्छा लगता है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे कि आपका जो ओवरऑल विजन है उसको आप अचीवेबल यूनिट्स में ब्रेक करोगे कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 साल बाद 3 साल बाद ये एग्जाम देना है या मुझे ये करियर में जाना है, तो मुझे उसके लिए आज क्या करना है। सो ब्रेक देम इनटू अचीवेबल यूनिट्स व्हिच आर गोल्स एंड दे कैन बी बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, कि मुझे अगले 3 महीने में अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है एंड देन आफ्टर दैट लाइक व्हाट ऑल शुड आई नीड टू डू। सो एक रफ आइडिया, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा व्हाइट एंड ब्लैक में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बट एक बिग आइडिया एक होना चाहिए आपके माइंड में कि हाँ मुझे ये पाथ मेरे को करना है एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन। सो योर विजन, गोल, योर प्लान एंड टेकिंग एक्शन। अगर आप सोचते रह जाओगे कि हाँ ड्रीम ही करते रह जाओगे कि मुझे करना है करना है करना है, बट इफ यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स, सो नो वन एल्स विल बी एबल टू डू ऑन योर बिहाफ। आपकी जो लड़ाई है उसमें आपको खुद ही फाइट करना है। आज भी मैं ऑफिस में हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, या फील्ड में जब मैं थी, अभी तो मेरा फील्ड प्रोफाइल नहीं है, आई एम इनटू मोर ऑफ अ प्रोटोकॉल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल, बट व्हेन आई वाज इन फील्ड कुछ भी इमीडिएटली सुबह आ जाता है अनएक्सपेक्टेड, यू विल नॉट इवन एक्सपेक्ट कि आज ऐसा होगा। यू प्लान योर डेज लाइक समथिंग एंड इट हैपेंस समथिंग एल्स। कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, या कहीं पे नदी में एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 2 kids drowned अनफॉर्चुनेटली इन एक नहर में, एंड देन यू हैव टू रश, और वो जगह भी बहुत दूर है। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेशन दैट यू डोंट एक्सपेक्ट, यू डोंट प्रिपेयर, बट एक वेग आइडिया, एक रफ आइडिया आपके माइंड में जरूर होना चाहिए और उसको हम ध्यान में रखते हुए अपने एफर्ट्स देते रहे। सो आपने हमेशा सुना होगा, आई विल नॉट बी न्यू टू से ऑल दिस, कि आपका जो हार्ड वर्क है, आपका फोकस है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि वाइस प्रिंसिपल साहब ने भी बोला कि आप यहाँ पे आज अटेंड कर रहे हो, तो मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत कुछ अच्छा बताऊंगी, लेकिन इस हॉल में अगर 150 बच्चे भी हैं और उसमें किसी एक या दो को भी कुछ आइडिया आया, किसी एक या दो को भी इंस्पिरेशन मिला, तो मेरा अपने ऑफिस में से यहाँ पे आके आप लोगों से बात करना, आई थिंक ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि आई कुड इन्फ्लुएंस 1 or 2 of you, and if I am able to do that, then my purpose of coming to this session is achieved. तो हम जो भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का इतना एडवेंट है, सब मोबाइल में आप लोग, इंटरनेट सबके हैं, आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाट नॉट, यू आर एक्सेसिंग यूट्यूब। प्लीज यूज योर टाइम वेरी स्पेयरिंगली, जो आपके फायदे का वेबसाइट हो, जो आपके फायदे, जो आपकी नॉलेज एनहांस करता हो, ठीक है, जोक्स एंड ऑल दैट इज ओके, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स,
We all need that social space also, that we also understand. But आप जो भी देख रहे हैं इंटरनेट पे, उसमें भी you should be, have that kind of enthusiasm कि हम जो हमारे रेलेवेंट है हम उसमें टाइम उसमें लगाएं. और जब हम बात कर रहे हैं एक्सीलेंस की, एक्सीलेंस क्या है? ये एक्सीलेंस क्या है? ये आपके पैरामीटर्स आप खुद डिफाइन कीजिए. लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑलमोस्ट 14 ईयर्स में, अब मैं थोड़ी सी बात I like to talk about maybe gender because I can see many female students here. So मेरे से भी many a time since many years people have been asking that how do I feel being a lady officer, or there are any inherent bias in administration when we are talking about male and female officers. So I generally say कि there is no inherent bias. ऐसा policy recruitment में या हमारा जो आगे करियर प्रोग्रेशन होता है उसमें कोई inherent bias नहीं है. But then the ecosystem in the society is such, friends, I am saying it very bluntly, the ecosystem in the society is such that women always have to keep on proving themselves. Women always have to keep on proving themselves. हम कितने भी ऊंचाई तक पहुंचे लेकिन एक डाउट, एक सस्पिशन हमेशा रहेगा और हमें उसको डिस्पेल करके रहना पड़ता है और हमें उसको प्रूव करके रहना पड़ता है that yes we are genuine in our commitments and that we are doing while well balancing our family and professional lives. There are some responsibilities which are given to a female by nature, whether it is bearing a child, giving birth to a baby. Of course it's a personal choice whether to have a child or not. But I am talking in general terms, giving birth to a baby, feeding a child for initial few months, year, 2 years, है ना. तो ये जो काम है ये एक महिला को ही करना है. और जब आप करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो उसी टाइम में आपका फैमिली प्रोग्रेस कर रहा है. It is the same time. You getting married and then you get good posting, then you are getting good posting, then you get pregnant, then you take leave. So you sometimes feel that your male colleagues are rising, उनको अच्छा प्रोफाइल मिल रहा है और आप छुट्टी पे हो. और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है. I'm sure this is also in the private sector. This is in all professions. So what I mean to say is कि there is bias, there is, but women have been proving their mettle all across. If we see now the percentage of women in administration, if I talk about IAS, IPS, so it time था जब it was not even 5 to 7%. Madam Kiran Bedi ji became the first woman IPS officer. Srimati Anna Raja Malhotra madam, she was the first woman ICS officer way back I think in 1952. आज के उस जमाने के मुकाबले आज 15 to 20% women representation है civil services में. But that is not enough. We need more women to come forward. We need more women in leadership roles, not only in civil services, in all professions. Women as doctors, women as paramedical staff, women in space science, women in sports. How we have seen how our sports stars, especially women, have made us proud in Tokyo 2020 Olympics, in Paralympics, in Commonwealth Games. So given a chance, females can outshine boys, but there are two things which I always say, that जो महिला है, जो फीमेल है, उसे भी अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो हौसला होना चाहिए. और ये बात उसको माइंड में रखनी पड़ेगी कि आज भी समाज इक्वल नहीं है. तो मेरी जो जर्नी है, मेरा जो रास्ता है, उसमें कठिनाई शायद ज्यादा आएगी, लेकिन मुझे उससे डरना नहीं है, मुझे उससे घबराना नहीं. I have to keep moving on that. And the second is the responsibility of the society. जो हमारा समाज है उसको भी ये ध्यान में रखना है कि there is still a requirement of providing equal access to opportunities. What do you mean by equal access to opportunities? It means कि हम ना सिर्फ
स्कूल एजुकेशन बल्कि हायर एजुकेशन में भी एक फीमेल को समान अधिकार दें, उसको समान एक्सेस दें। ये बात जो दिल्ली में बच्चा पला बड़ा है वो शायद नहीं समझ पाएगा, बट आई हैव सर्व्ड इन रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आई हैव सर्व्ड इन हरियाणा आल्सो, जहां गांव-गांव भी हम घूमे हैं। तो आज भी अनफॉर्चुनेटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी अच्छा नहीं है या अच्छा है तो उत्तम क्वालिटी नहीं है। तो इस वजह से भी क्या है कि नॉट एवरी पेरेंट इज हैविंग दैट मनी, कॉन्फिडेंस या जो भी चीजें लगा लीजिए, वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस शायद नहीं हो पाते हैं कि वो लड़कियों को बाहर भेजें, उनको हॉस्टल में एडमिशन करके पढ़ाएं, इवन दो थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव नाउ। तो उसके लिए हमें वी नीड मोर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस द कंट्री, एंड इट इज नॉट ओनली कि गवर्नमेंट ही करे कि हम हमारे सरकारी तंत्र के द्वारा ही हो, प्राइवेट सेक्टर आल्सो हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। And unless and until we invest in education, we have more education institutions, our situation will not improve. So, for female, it is both the ways that the female also needs to have that urge and confidence in her own self, and then it is also the responsibility of the society to encourage her and enable her to nurture her dreams and achieve her goals. आज हमारे इस पूरे हॉल में वी आर हैविंग द यंग इंडिया। यंग इंडिया के लिए इंडिया इतना प्राउडली वी एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो बाय यंगेस्ट कंट्री वी मीन कि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है 15 to 45, उस एज ग्रुप में भारत में जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा यूथ एनर्जी, यूथ की जो पोटेंशियल है उस पे हमेशा उन्होंने बिलीव किया। एंड जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी, हमने देखा किस तरीके से हमारे देश की स्वतंत्रता दिलाने में किस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी ने साथ दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम always had faith on youth. He always said that youth has the creativity, the talent to invent, the talent to innovate, the capacity to lead a new path, the courage to innovate. So ये सब हमको अपने आप में लेके आना है। हाँ, and I am very happy to see कि आज अगर मैं अपना टाइम से कंपेयर करूं तो आज का यूथ बहुत ज्यादा इन्फॉर्म है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमें जरूरत क्या है, हम ये ध्यान में रखें, मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग ये ध्यान में रखें, हम कोई भी करियर प्रोफेशन चूज करते हैं, हम लाइफ में किसी भी करियर में जाएं, वी ऑल शुड नेवर फॉरगेट दैट वी आर प्राउड इंडियंस, और हम अपने देश और हम अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें हमेशा जहन में रहना चाहिए। चाहे इंडियंस बाहर, हमने देखा सो मेनी कंपनीज के CEO are from the Indian origin। तो हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो भी करियर प्रोफेशन चूज करें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स हमारे माइंड में आना। आज के दिन में इतने सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल शक्ति अभियान, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन। तो इन सब फ्लैगशिप प्रोग्राम की अच्छी इम्प्लीमेंटेशन तभी संभव हो सकती है जब वो एक जन आंदोलन का रूप ले, और जन आंदोलन कैसे होता है, जब पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। सो वी नीड मोर सिटीजन एंगेजमेंट। वी हैव सीन हाउ COVID-19 पैंडेमिक इन लास्ट 20 and 21 I was during that time posted in Gurugram। देखा हमने किस तरीके से RWA, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स, उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे की मदद करी, माइग्रेंट वर्कर्स को खाना खिलाया, जो बेचारे डे वेज लेबर्स थे, स्लम्स में रह रहे थे, उनकी नौकरी छूट गई थी, दे वर नॉट हैविंग देयर डेली का जो उनको भत्ता मिलता है वो नहीं ले पा रहे थे। तो पीपल हेल्प देम हैव द फूड, हैव द क्लोथिंग। तो ये जो हमारा जो एक सोसाइटी का जो ताना बाना है, इसको हम ना भूलें, और हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं ये हमेशा हमारे जहन में आना चाहिए। जैसे
हम सुनते भी हैं, प्रोज है कि खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे। और जो चीज आप दूसरों के लिए करते हैं, निस्वार्थ भाव से जो करते हैं, उसकी खुशी और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, आई थिंक वो अनपैरेलल है। तो ये छोटी छोटी खुशियां, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, ये कैसे करें? जरूरी नहीं है कि आप एक इंडस्ट्री लगाएंगे तभी आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ऐसा नहीं है जरूरी। आपके आसपास भी, नेबरहुड में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको आपकी जरूरत होगी। we all should support. That is the strength. इंडिया की स्ट्रेंथ यही है कि हम जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। आज नॉर्दर्न इंडिया में नवरात्रि सेलिब्रेट हो रहा है, और हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, त्रिपुरा में मैं पोस्टेड होगी, वहां पे दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा है। तो ये जो सब एक ताना बाना है, वी हैव टू एक्चुअली कीप दैट सोशल फैब्रिक इंटैक्ट। एंड जब हम बात बोलते हैं यंग इंडिया, न्यू इंडिया, दैट इज ऑल पॉसिबल। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हमारे जो युवा शक्ति अपनी आसपास से प्रेरणा को लेके आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़े और अपने देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दे। और लास्ट में, बिकॉज आई वुड आल्सो लाइक टू हैव फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, लास्ट में मैं एक दो बातें यही बोलना चाहूंगी कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात में कोई एग्जैजरेशन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप ही अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे, कोई दूसरा बंदा तो करेगा ही नहीं। Not even your family and parents will support if you don't have faith in your own capabilities. And if you have faith, ये हो सकता है आपको, आप जो चीज चाहते हैं वो फर्स्ट टाइम में ना मिले। ये जरूरी नहीं है कि आप चाहते हैं कि मुझे वहां जाना है, आपको फर्स्ट टाइम मिल जाए, नहीं है जरूरी। बट यस, देन वो किसी और तरीके से मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको जो बीच में जो बात बोली थी कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो व्हाट और व्हाई, ये जो व्हाई है ना, ये भी आपको लाइफ में गाइड करता रहेगा। मुझे यहाँ क्यों जाना है, मुझे ये चीज क्यों करनी है, मुझे वो क्यों अचीव करना है, इससे मेरा क्या पर्पस अचीव होगा, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हम अपने एफर्ट्स पर विश्वास रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। एंड आई कैन ओनली एंड विद कुछ हिंदी के प्रोज मुझे याद आ रहे हैं क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ। तो एक प्रोज है कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। You keep on moving in life and keep leaving your footprints, and that is how the life journey is. आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट बात है कि सबको खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिकली मेंटली फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज प्रेशर लेके करोगे तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड आज अपने आसपास के लोगों की मदद करते रहिए। आई थिंक दीज वर द पॉइंट्स